أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك فرمایا کس نے روکا تجھے اللہ تسجد کہ نہ سجدہ کرے تو اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کس نے تجھے روکا قال انا خیر من تو بولا انا خیر من کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا من نار آگ سے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وخلقتہ اور اس کو من طین مٹی سے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کس نے تجھے روکا کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا جی جناب تو یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا ہے، پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو یہ اس آیت کے اندر آپ نے ذکر پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورت بنائی، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سب ملائکہ کو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا تو تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا تھا کہ سب کے سب حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب وہی بات یہاں چھیڑی جا رہی ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ توجہ ہے، یہاں کس بات کا تذکرہ ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، وہی بات پوچھی جا رہی ہے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا قال ما منعک، تجھے کس نے روکا؟ اللہ فرماتے ہیں تجھے کس نے روکا، کس چیز سے؟ اللہ تسجدہ، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک جب تجھے میں نے حکم دیا ہے، جب تجھے میں نے کہا ہے کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ یہاں غور کریں اگر تو یہاں پر تسجدہ، پچھلی آیت میں لفظ آیا تھا فسجدوا، ٹھیک ہے، تو یہ سجدہ لفظ آتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سجدہ۔ تو اگر ہم اس کو لغت میں دیکھیں کہ سجدہ کا معنی کیا ہوتا ہے، توجہ ہے، سجدے کا معنی کیا ہوتا ہے، تو علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ سجدہ کا لغت میں معنی یہ ہے کہ سر کو نیچے کرنا، سر کو نیچے کرنا، جھکنا، عاجزی اور خاکساری کرنا، عاجزی اور خاکساری کرنا، یہ لغت میں معنی کیا گیا ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری کیا لکھتے ہیں؟ لغت میں معنی کیا ہے کہ سر نیچے کرنا، جھکنا، عاجزی اور خاکساری کرنا، اور فقہی اصطلاح میں، فقہ میں سجدہ کہتے کسے ہیں؟ فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ زمین پر پیشانی رکھنا، اور اس سے بڑھ کر عاجزی اور ذلت جو ہے وہ متصور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر
फ़िक़ही इस्तिलाह में इसका माना क्या किया गया है कि ज़मीन पर पेशानी रखना, ज़मीन पर पेशानी रखना। तो कहते हैं कि इससे बढ़कर ज़िल्लत वो तसव्वुर में भी नहीं लाई जा सकती। किससे बढ़कर? कि इंसान को अल्लाह ने सबसे खूबसूरत और सबसे आला जो चीज़ अता की है वो उसका चेहरा है, ठीक है। और ये चेहरा, ये जो सबसे आला अल्लाह ने इंसान को अता किया है, इसको ज़मीन पर रख देना, पेशानी का ज़मीन पर, जैसे हम कहते हैं ना नाक रगड़, बच्चा अगर कोई गलती करता है तो अक्सर औकात हम कहते हैं ज़मीन पे नाक रगड़ो भाई, कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। नाक रगड़ना तो ये एक छोटा सा फेल है ना, तो पेशानी का झुक जाना, माथे का झुक जाना, अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे को रखना, ये ज़िल्लत का सबसे बड़ा माना समझा जाता है। कि इंसान की सबसे बड़ी ज़िल्लत ये है कि वो अपनी पेशानी को किसी के सामने रख दे। ये चीज़, बात की समझ आ रही? ये चीज़ पेशानी का किसी के सामने रखना इंसान के लिए सबसे बढ़कर ज़िल्लत का बाइस है, सबसे बड़ी ज़िल्लत का बाइस है। तो इंसान इस कायनात के अंदर कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसके सामने वो इतना ज़लील हो कि अपनी पेशानी को उसके सामने रख दे। एक ही बारगाह है जहाँ हम इस कदर नीचे गिर के अपनी पेशानी को झुका सकते हैं, रख सकते हैं, और इस पेशानी को झुकाना, रखना, ये हमारे लिए वहाँ ज़िल्लत का बायस नहीं बनता, बल्कि वहाँ झुक जाना जो अल्लाह की बारगाह है, अल्लाह की बारगाह में अगर इंसान पेशानी रख देता है, झुका देता है, तो वहाँ ज़िल्लत का बायस नहीं बनता, बल्कि अल्लाह ताला उसको उरूज अता फरमा देते हैं जो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका देता है। इसलिए हुक्म फरमाया कि सजदा सिर्फ़ और सिर्फ किसको होगा? अल्लाह ताला की ज़ात को। अब सवाल यहाँ ये पैदा हुआ कि आप कह रहे हैं कि सजदा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे खुद इरशाद फरमाया है कि फसजदू, बस सब सजदा करो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो आदम को सजदा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये हुक्म है अल्लाह का। क्या है? अल्लाह ने उस वक्त फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, ठीक है। वो सजदा ताज़ीमी था और हुक्म रब्बानी था। एक बात क्या है? सजदा ताज़ीमी, और दूसरी बात के हुक्म रब्बानी, अल्लाह का हुक्म था। बस अब इसके बाद किसी भी शख्स के लिए, बात समझ, सजदा ताज़ीमी भी नहीं किया जा सकता, आई समझ, सजदा हुक्म भी नहीं किया जा सकता कि अगर आपको कोई पीर कहे, कोई बड़ा कहे आपके फ़लाँ को सजदा करो, हम किसी की बात इस सूरत में, इस ज़िमन में हम किसी की बात नहीं मानेंगे कि सजदा सिर्फ़ और सिर्फ होता है अल्लाह की ज़ात को, चाहे वो कोई वक्त का वली हो, गौस हो, कुतब हो, अब्दाल हो, ताबी हो, तबा ताबी हो, सहाबी हो, नबी हो, रसूल हो, पैगंबर हो, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की अजीम तरीन हस्तियाँ अल्लाह ने कायनात में भेजी हैं, सब की सब वो अल्लाह की मखलूक में शामिल हैं। तो जो मखलूक में है उसको सजदा हराम है, उसको क्या है? सजदा हराम है। इसलिए सजदा सिर्फ और सिर्फ किसको किया जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को सजदा किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई ना कि वहाँ सजदे का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, फरिश्तों को कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। हालांकि हुक्म ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा हराम है, नहीं किया जाता। तो यहाँ क्यों? इसलिए मैंने क्या कहा, वो क्या था? सजदा ताज़ीमी, और दूसरी बात हुक्म रब्बानी था। यहाँ पे आप देखें, फिर पूछा अल्लाह ने कि जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने पूछा तुझे किस चीज़ ने रोका? तो जवाब सुनिए, इस जवाब में हमारे लिए सबक भी है। पहले इसको सुने, कहता है शैतान क़ाला, कहा उसने, शैतान ने कहा अना खैर। अब यहाँ तवज्जो कीजिए, यहाँ भी क़ाला है, यहाँ भी क़ाला है। थोड़ी सी बात भेजे में उतरी आपके क्या नहीं? यहाँ क़ाला लफ्ज़ वही है, यहाँ भी क़ाला लफ्ज़, लेकिन यहाँ पर ये क़ाला, ये हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया। अब इसी का यहाँ पे माना करेंगे क़ाला, अल्लाह ने फरमाया माज़अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा इंसान से
कि यहाँ भी कौला का माना वो अल्लाह का हुक्म या अल्लाह ने फरमाया, और वो कहे कि यहाँ भी कौला है तो इसका माना ये होगा यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि सियाक़ व सुबाक़ देखा जाएगा कि यहाँ किसका हुक्म है और यहाँ किसकी बात है। तो पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यहाँ उस बात का जवाब दे रहा है कौन? इब्लीस। इब्लीस कह रहा है क़ाला अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। क्या है? मैं इससे बेहतर हूँ। वजह क्या बयान कर रहा है? वजह क्या बयान कर रहा है कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तो खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया है, मिन नार, आग से, तूने मुझे आग से पैदा किया है, व खलक़तहू मिन तीन, और आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है। तो मिट्टी जो है वो मिट्टी अफजल नहीं है, आग अफजल होती है, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अफजल हूँ। यूँ कह के साड़ी को इज्जत ही कोई नहीं, मैं अफजल हूँ और मैं इसको अदना को सजदा क्यों करूँ। ये बात उलमा फरमाते हैं इब्लीस की ये बात सरासर गलत है, सरासर, कि वो कहता है कि आग अफजल है, मिट्टी अफजल नहीं है। इब्लीस क्या कह रहा है? आग अफजल है, तूने मुझे आग से पैदा किया है, मिट्टी अफजल नहीं है, हज़रत आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए मैं इसे सजदा। उलमा फरमाते हैं इस एतबार से जो इस कौल को, इस बात को जो इब्लीस ने कहा कि मुझे तूने आग से पैदा किया, आग अफजल है, उलमा फरमाते हैं 10 वजूहात हैं जिसमें ये साबित होता है कि आग अफजल नहीं है, मिट्टी अफजल है। आग अफजल नहीं है, मिट्टी अफजल है। कौन कौन सी 10 वजूहात? तवज्जो से जल्दी जल्दी बयान करता हूँ ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो जाए। कहते हैं कि पहली वजह यह है कि आग की तबीयत का तकाजा चीज़ों को जला देना होता है, उनको तलफ कर देना है। आग की तबीयत क्या है? चीज़ों को जला देना और ख़त्म कर देना होता है, जबकि मिट्टी किसी चीज़ को तलफ या ज़ाया नहीं करती। मिट्टी किसी चीज़ को तलफ या ज़ाया। नंबर 2, मिट्टी में इंसानों और हैवानों का रिज्क पैदा होता है। मिट्टी से इंसानों का और जानवरों का रिज्क पैदा होता है। कपास पैदा होती है जिससे इंसान का लिबास बनता है, जबकि आग में कोई चीज़ पैदा नहीं होती, बल्कि ये सब कुछ खाक कर देती है। नंबर 3, मिट्टी में अगर एक दाना डाला जाए तो इसकी बरकत से कमोबेश 700 गुना दाने पैदा होते हैं। एक दाने से कमोबेश 700 से ज़्यादा दाने पैदा होते हैं, ठीक है। और जबकि आग किसी चीज़ को बढ़ाती नहीं है, बल्कि असलन उस चीज़ को नेस्तो नाबूद कर देती है, ख़त्म कर देती है। नंबर 4, आग को अपने वजूद में मिट्टी की ज़रूरत है। आग मिट्टी की मोहताज है, मिट्टी की उसको ज़रूरत है, क्योंकि आग ज़मीन के बग़ैर नहीं हो सकती। ज़मीन होगी तो आग वगैरह होगी, ज़मीन का वजूद है तो सब कुछ है, ज़मीन का वजूद ही ना हो तो ये आग कहाँ से होगी। तो इसलिए फरमाया कि आग को मिट्टी की ज़रूरत है, या आग मिट्टी की मोहताज है, लेकिन ज़मीन का वजूद आग का मोहताज नहीं है। नंबर 5, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बकसरत फ़ायदे जो है वो कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन के बहुत सारे फ़ायदे कुरान मजीद में फरमाए हैं। फरमाया अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया, ठीक है। और इसी तरह फरमाया अलम नजअलिल अर्द किफ़ाता अहयाअन व अमवाता वजअलना फ़ीहा रवासी, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली न बनाया जिंदों और मुर्दों के लिए, और हमने इसे बुलंद मजबूत पहाड़ पैदा कर दिए। इसी तरह फरमाया कि नंबर 6 कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतअद्दिद आयात में अल्लाह ताला ने ज़मीन को बरकत करार दिया है। ज़मीन को क्या करार दिया है? बरकत करार दिया है। जिस तरह कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा, ये लफ्ज़ आया व बारक फ़ीहा, कि हमने ज़मीन को 2 दिनों में बनाया, तुम इसके लिए शरीक बनाते हो। ये परवरदिगार है सारे जहानों का, जिसने ज़मीन के ऊपर भारी पहाड़ों को पैदा किया, फिर उसमें बरकत दी, फिर उसमें क्या किया? बरकत दी। तो ज़मीन के अंदर बरकत का ज़िक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, ठीक है। और इसी तरह नंबर 7 पे मिट्टी के शर्फ़ के लिए ये काफ़ी है, मिट्टी के शर्फ़ के लिए कि उसको अल्लाह ने मिट्टी को इज़्ज़त दी है, ये काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना घर बनाया है, जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं। मिट्टी को ये शर्फ़ हासिल है
کہ ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है जिसमें हर वक्त तवाफ़ किया जाता है, अल्लाह ताला को सजदे किए जाते हैं, उसकी इबादत की जाती है। मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है, बेशुमार अल्लाह के घर हैं जहाँ उसकी इबादत होती है। इसके बरखिलाफ़ आग में ऐसी कोई फजीलत नहीं है। नंबर 8, ज़मीन में अल्लाह ताला ने लोगों के नफ़े के लिए मादनियात रखे हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, बागात हैं, गल्ला है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में लोगों के फ़ायदे के लिए रखी हैं, जबकि आग के अंदर ऐसा कोई नफ़ा नहीं है। और नंबर 9 पे है आग की ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत यही है, आग की ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत ये है कि इसकी हैसियत ज़मीन की खादिम की है। अव्वल तो आग का वजूद ज़मीन के वसीले से है। आग या लकड़ियों को जलाकर हासिल होती है या गोबर को जला के हासिल होती है। आग कहाँ से होती है? लकड़ियाँ जलती हैं तो आग पैदा होती है, या गोबर से जैसे पाथिया वगैरह बनाते हैं तो उनको आग लगाई जाती है, फिर आग जलती है, ठीक है। या कुदरती गैस से या तेल से, या कुदरती गैस होता है जो हम आजकल घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारे घरों में गैस लगा हो वो, तो या इसी तरह कहते हैं तेल से, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी अगर देखी जाएँ तो ये भी ज़मीन से ही आती हैं, लकड़ी भी, तेल भी, कुदरती गैस भी, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ज़मीन से। अब कहते हैं खुलासा ये है कि मिट्टी असल और मखदूम है, मिट्टी असल है और मखदूम है, और आग जो है वो इसकी फ़रा है और आग इसकी खादिम है, और इसको मिट्टी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। और नंबर 10 पे आखिर पे है कि इबलीस लईन का मादा, इबलीस लईन जो था उसका मादा यानी उसको जो तख्लीक किया गया जिस चीज़ से, वो भड़कने वाली आग है। भड़कने वाली आग से शैतान को तख्लीक किया गया, और भड़कने वाली आग और शोला जो है वो फ़ी नफ्स ही ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। कैसे कि हवा इसको उधर से इधर, हवा उसको इधर से उधर ले जाती है। मसलन हम आग जलाते हैं, तेज़ हवा चली हो तो हमने ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है उसको तो आँच लग ही नहीं रही होती, उसको आग पहुँच ही नहीं रही होती, हालांकि नीचे जल रही है। क्यों नहीं पहुँच रही? इसलिए कि हवा उसको कभी इधर धकेलती है, कभी इधर धकेलती है, ठीक है। इसलिए फरमाया कि आग को जो है वह हवा कभी उधर ले जाती है, कभी इधर ले जाती है। तो फ़ी नफ्सी ही ये जो है वो मिट्टी ज़ाती तौर पर मजबूत है, आग फ़ी नफ्सी मजबूत नहीं है। आग जो है वो ज़ाती तौर पर मजबूत, और मिट्टी जो है वो ज़ाती तौर पर क्या है? मजबूत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तज़किरा फरमाया कि हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया, इबलीस को आग से। ये तज़किरा इबलीस ने खुद कर दिया, कहता है कि मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे तूने मिट्टी से बनाया है। मिट्टी अफजल नहीं है, आग अफजल है। इसलिए जो है ना, अफजल जो है वो, आला जो है वो अदना को सजदा नहीं करता, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। जो मैंने आपसे बात अर्ज़ की मुख्तसरन समझे, ये इस जुमले के ऊपर फोकस करें, क़ाल अना खैर, मैं बेहतर हूँ। और यही चीज़ उसको लानती बनाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह की बारगाह से अगर उसको लानत पड़ी है, उसको धुतकारा गया है, उससे वहाँ से निकाला गया है, तो किस वजह से? उसके ये जुमले की वजह से। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो करें कि जब इंसान के अंदर मैं पैदा होती है, तकब्बुर है। जब इंसान के अंदर मैं, मेरी इज्जत ही कोई नहीं, जब मैंने पहले कहा इन्होंने मुझे ऐसे कहा है, मुझे ऐसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। बंदा जब ये मैं की तकरार करता है तो उसके अंदर से ये तकब्बुर की बू आती है। मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा कारी हूँ, बहुत बड़ा हाफिज़ हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरे तो मुकाबले में भी कोई नहीं है, मेरे मुकाबले में आ ही कोई नहीं सकता, मुझे अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी है। ये सारी की सारी ये जो तकरार आ रही है, ये जो गिरदान आ रही है मैं की, ये शैतान के अंदर थी। और इसी मैं की तकरार ने और इसी मैं के कहने की वजह से अल्लाह ने उसे रांदे दरगाह किया, अल्लाह ने उसे लानती बनाया, अल्लाह ने उसे जहन्नमी बनाया। क्यों बनाया? कि उसने तकब्बुर किया है। उसने क्या किया है? तकब्बुर किया है। तो जब तकब्बुर किया है, खुद को सबसे बेहतर तसव्वुर किया है, उसके दिल में ये बात ना आई कि सोच लेता कि अल्लाह फरमाते इज़ अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। हुक्म जब अल्लाह ताला अता फरमा दे, अल्लाह हुक्म दे, ठीक है,
جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں اس کو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کام ہے، کیسا کام ہے، اس سے مجھے نقصان ہے، فائدہ ہے، میں اس سے جو ہے وہ رفعت، بلندی، عزت و مرتبہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، یا میری جان چلی جائے گی، میری جان کا نقصان ہے، میرے مال کا نقصان ہے، پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کی فرما برداری کی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آگ میں کودنے کا حکم دیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتوں نے آ کے کہا تھا ہمیں کہیں ہم آپ کو بچا لیتے ہیں، آپ حکم دے آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی، میرا رب چاہتا ہے نا کہ ابراہیم آگ میں جلے تو میں تیار ہوں۔ آگ میں پھینک دیا گیا، خوشی سے آگ میں چلے گئے، ملک چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا تو کر دیا اپنے طور پر۔ کس لیے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، تمام پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے، اور اس پہ راضی ہو کے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا